Hello guys, now let us see common base configuration, right? And its characteristics. So common base configuration में क्या होगा? ये आपका input current है, right? What is the input current? Input current is your, just one second. Okay. So IE is nothing but your input current, right? IC is nothing but your output current, right? And IB is nothing but your which is common, right? So this is input current. Input current. What is input voltage? Input voltage is your VEB, right? Output voltage is nothing but VCB or VBC. Okay. अभी देखिए, what is input characteristics? Input characteristics is nothing but your graph of input current. Input current was IE versus input voltage. Input voltage is VEB, right? And at that time, what is constant? Output voltage, that is your VCB, should be constant, right? And similarly, output characteristics. Output characteristics is the graph of output current. Output current क्या है आपका? Output current is your I. क्या था आपका? Output current I common base, so C, right, versus IC versus um, output uh, आउटपुट वोल्टेज. आउटपुट वोल्टेज क्या था आपका? यस, यहाँ पर देखिए, आउटपुट वोल्टेज इज VCB, राइट, VCB. सो यहाँ पर मैं VCB बोलता हूँ. एंड एट दैट टाइम इनपुट करंट शुड बी कांस्टेंट. इनपुट करंट क्या आपका? IE, राइट. सो ये बात याद रखिए, आपको ग्राफ के जो एक्सेस है उसको बनाने में दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी. ग्राफ ऑफ आउटपुट करंट IC वर्सेस आउटपुट वोल्टेज VCB. Input current is constant, IE should be constant, right? So this is nothing but axis of common base configuration. Okay, now let us concentrate here on the circuit diagram, right? So in common base configuration, we know that alpha is nothing but the current amplification factor. It is given by output current by input current, that is IC by IE, right? And then we know that if there are 100 free electrons, there are two holes, and here there are 98 free electrons, right? So we are getting some current here. We are all the electrons are getting in the collector region. And then हमने ये बोला था कि आई एम गेटिंग द करंट ड्यू टू 98 free electrons IC, and I am getting IE due to 100 free electrons, and it is approximately equal to 1, right? Okay, now whatever IC is there, that is combination of two components, right? One is due to IC injected charge carrier, जो आपके charge carrier collector में जा रहे हैं उसके वजह से जो करंट मिल रहा है, that is IC due to injected charge carriers, plus there is some reverse current which is flowing in the collector circuit, that is ICB when emitter is open, right? ये O का मतलब क्या होता है? This is emitter is open, right? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पर पावर सप्लाई नहीं लगाया तो ड्यू टू दिस पावर सप्लाई सम करंट विल फ्लो इन दिस, एंड ये जो डायोड है इसके रिवर्स में करंट आ रहा है. सो whenever the current is flowing in the reverse direction in the diode, that is due to the minority charge carrier, and it is called as saturation current, right? So ये आपका ICBO है, and this is very very small, right? And if this is very very small, I can neglect it. So अगर आपको इतने डीप में नहीं जाना है, राइट थोड़े टफ कॉन्सेप्ट नहीं सीखने हैं पासिंग के लिए, अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ आप ये फॉर्मूला देखिए. कौन सा? ये वाला, अल्फा इज इक्वल टू IC अपॉन IE, राइट? सो दिस इज योर कॉमन base configuration, right? So I can IC is equal to IC injected. So IC का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर डाल दिया. यहाँ से IC is equal to alpha times IE, and this is the formula, complete formula for IC. Okay, अभी देखिए इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने देखा था, पंच थ्रू इफेक्ट देखा था, राइट? व्हेन आई वाज टीचिंग यू द ट्रांजिस्टर, राइट? इसी को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, राइट? अगर देखिए, अगर मैंने ये VCB, अगर यहाँ का वोल्टेज मैंने बढ़ाया, राइट, यहाँ का वोल्टेज बढ़ाया, मतलब ये डायोड कैसा है आपका? ये डायोड है आपका रिवर्स बायस में. रिवर्स बायस अगर डायोड के अक्रॉस बढ़ाया, रिवर्स बायस अगर डायोड के अक्रॉस बढ़ाया, तो ये जो इसके बीच में जंक्शन रहेगा ना, कलेक्टर एमिटर जंक्शन, सॉरी कलेक्टर बेस जंक्शन, सो इसका विड्थ भी बढ़ेगा, राइट? जो डिप्लीशन लेयर है उसका विड्थ बढ़ेगा. रिवर्स बायस बढ़ेगा तो डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ेगा. अगर डिप्लीशन का लेयर का विड्थ बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली जो विथ डिप्लीशन लेयर है वो किस में पेनिट्रेट होगा? वो बेस में पेनिट्रेट होगा. सो अगर ये यहाँ का जंक्शन बढ़ रहा है, यहाँ का जंक्शन बढ़ रहा है, तो बेस का विड्थ जो है, बेस कम कम होते जा रहा है. सो विड्थ ऑफ द बेस रीजन विल decrease, right? If width of the base region is decreasing, if width of the base region is decreasing, means what is happening? The base width is getting
varied, the base width is getting modulated, right? So this effect is also called as base width modulation, or this effect is also called as early effect, right? So ये हो गया आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, राइट? अभी देखते हैं इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्राफ ऑफ इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज इज कांस्टेंट, राइट? सो लेट अस से मैंने VCB आउटपुट वोल्टेज जो है, राइट, ये यहाँ का वोल्टेज फिक्स किया 4 वोल्ट पे, यहाँ का वोल्टेज फिक्स कर रहा हूँ 4 वोल्ट पे, एंड देन आई एम स्लोली इंक्रीजिंग द वोल्टेज, राइट? सो जीरो से लेके मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, 1 वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट हो गया, राइट? सो देखिए क्या होगा, लेट अस से कि ये दिस इज योर दिस इज लाइक अ डायोड, राइट? दिस इज लाइक अ डायोड, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो ये फॉरवर्ड बायस में है, सो इट इज so the input characteristics of common base configuration is same as forward characteristics of the diode। मतलब क्या, कुछ टाइम के लिए कंडक्ट नहीं होगा, but after crossing its barrier potential voltage, that is 0.7 volt for silicon, as the voltage will increase the current will increase, right? Similarly फिर से मैं एक बार एक्सपेरिमेंट करता हूँ, इसको मैंने 4 वोल्ट किया था, इसको 8 वोल्ट रख रहा हूँ, 8 वोल्ट रख के फिर से इसको 0 से बढ़ाता हूँ, तो क्या होगा, ये फिर से दूसरा कर्व आ जाएगा मेरे पास में, राइट? नाउ सो दिस, यही याद रखना है आपको, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज सेम एज दैट ऑफ द आउटपुट डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? अभी देखिए इसमें मुझे स्लोप निकालना है, स्लोप निकालना है मतलब क्या, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, राइट? सो अगर इस ग्राफ का स्लोप निकाला तो और उसका रिवर्स लिया, तो डेल्टा वी ई बी बाय डेल्टा आई ई आएगा, राइट? सो अगर व्हाट इज दिस, V बाय आई इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा इसका, वेरी लो, राइट? सो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में इनपुट रेजिस्टेंस अगर निकाला तो वो कैसे निकलेगा, वेरी, इट विल बी वेरी लो, राइट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? थोड़ा सा टफ टॉपिक है, आपको दो दो बार देखना पड़ेगा वीडियो, नहीं स्लो कर कर देखिए, अगर आपको फास्ट हो रहा है तो स्लो करके देखिए स्पीड इसका, राइट? थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है ये, राइट? मेरे हिसाब से 70% ऑफ द स्टूडेंट्स विल स्किप दिस टॉपिक, राइट? सो let now let us see the output characteristics. Output characteristics is the graph of output current. Output current is IC versus output current is IC versus output voltage is VCB between these two junctions, right? And at that time whatever input current is there, IE, that is kept constant, right? तो ये बात हमेशा याद रखिए आप, okay? Now let us see what happens, right? Okay, तो अभी देखिए कट ऑफ रीजन, राइट? कट ऑफ रीजन में क्या होगा, तो देखिए जब मैं इनपुट दे ही नहीं रहा हूँ, राइट, वेन एवर दिस वैल्यू आई ई, इसका वैल्यू अगर मैं जीरो रखता हूँ, इफ दिस इज जीरो, जीरो मीन्स व्हाट, आई एम नॉट गिविंग एन इनपुट। अगर मैं इनपुट ही नहीं दे रहा हूँ, अगर मैं इनपुट ही नहीं दे रहा हूँ, अगर मैं इनपुट ही नहीं दे रहा हूँ, ओके, अगर मैं इनपुट ही नहीं दे रहा हूं तो फिर आउटपुट में करंट जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा, राइट? बट यू नो वट एवर करंट इज देयर, वट एवर करंट इज देयर, जो कुछ करंट फ्लो हो रहा है इसमें, वो किसके वजह से हो रहा है, इस डायोड की वजह से, ये डायोड, ये बैटरी की वजह से। ये डायोड कैसे आपका रिवर्स बायस में है, अगर ये रिवर्स बायस में है तो रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा रहेगा, दैट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, दैट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, that is due to the minority charge carriers. Just 1 second. Okay, so in reverse bias whatever current is there that is flowing, and that is due to the minority charge carrier, और वो करंट कितना रहेगा, ICBO। ICBO मतलब क्या, करंट फ्लोइंग फ्रॉम कलेक्टर टू बेस व्हेन दिस इज ओपन, यहाँ पर कुछ लगाया ही नहीं है, ये ओपन है, राइट? सो एट दैट टाइम ऑलमोस्ट, एंड ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट मिलता है वो वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है। सो आइडियली देर इज नो करंट विच इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट, राइट? तो इस रीजन को क्या बोलेंगे हम, कट ऑफ रीजन, राइट? ये रीजन को क्या बोलेंगे, कट ऑफ रीजन, right? Now what will happen if I increase this voltage, what will happen if I increase this voltage from 0 volt, 1 volt, 2 volt and so on, right? VCB, right? So output characteristics, right? यहाँ पर अभी इनपुट करंट क्या रखना है आपको, इनपुट करंट कांस्टेंट रखना है। इनपुट करंट अगर कांस्टेंट रखना है तो आई अगर कांस्टेंट रखा, लेटस से कि इसको मैंने फिक्स किया, लेटस से इसको फिक्स किया 4 वोल्ट पे, ओके? अगर इनपुट को फिक्स किया 4 वोल्ट पे, एंड देन मतलब अगर ये वोल्टेज फिक्स है तो आई भी फिक्स हो जाएगा। सो लेट अस से 1 मिली एम्पियर पे
I फिक्स हो गया. Now if I try to increase the output voltage VCB, if I try to increase the output voltage VCB and then I will try what is happening for my IC, तो अगर मैं क्या करूँगा, अगर मैं VC को बढ़ाऊंगा और IC का वैल्यू देखूंगा तो IC का वैल्यू ऑलमोस्ट कैसे मिलेगा आपको, कांस्टेंट ही मिलेगा, राइट, इट विल बी कांस्टेंट. ओके, अगेन इफ आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आई इसका वैल्यू फिर से 8 वोल्ट कर दूंगा तो इससे मुझे 2 मिली एम्पेयर का इनपुट करंट मिल रहा है. ये अगर फिक्स रखा एंड फिर से मैंने VCB ये वोल्टेज को बढ़ाया तो फिर से मुझे दूसरा ग्राफ मिलेगा, फिर से मुझे तीसरा ग्राफ मिलेगा. लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें एज यू इंक्रीज, राइट, यहाँ पर देखिए आई का वैल्यू ये है, राइट, यहाँ पर ये है आई का वैल्यू लेटेस्ट से 2 एम्पियर है तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 2 एम्पियर ही है, राइट. यहाँ पर आपका आई का वैल्यू 3 मिली एम्पियर है, यहाँ पर भी IC का वैल्यू ऑलमोस्ट 3 मिली एम्पियर होगा, राइट. क्यों, क्योंकि हमें पता है कि IE, राइट, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IC. ओके, सो इसमें ये रीजन को क्या बोलेंगे हम, ये रीजन को बोलेंगे एक्टिव रीजन, राइट. एंड देन यू नो, सो व्हाट हैपेंस, यू नो, कट ऑफ रीजन में आई इज इक्वल टू 0 तो मुझे रिवर्स सैचुरेशन करंट मिल रहा है, राइट. ये व्हेनेवर एमिटर इज ओपन आई एम गेटिंग द करंट फ्रॉम कलेक्टर टू बेस, राइट, इन व्हाट, कट ऑफ रीजन, राइट. एक्टिव रीजन में क्या हो रहा है, आपका IC और IE ऑलमोस्ट इक्वली है, आपका IC और IE आपका ऑलमोस्ट इक्वली है. देखिए ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल है. ओके, सो और वो कैसा है, कांस्टेंट भी है. ओके, सो आई, इफ आई इज कांस्टेंट IC विल बी कांस्टेंट, राइट. अगर ये कांस्टेंट ही मिल रहा है मुझे, आई कांस्टेंट है तो IC भी कांस्टेंट मिल रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि दिस विल एक्ट एज अ कांस्टेंट करंट सोर्स, दिस विल एक्ट एज अ constant current source. Now if I try to find out the resistance, if I try to find out the resistance, इसका अगर स्लोप निकालने की कोशिश करूंगा मैं, इसका अगर स्लोप निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो देखिए ऑलमोस्ट जो आपका डेल्टा Y बाय डेल्टा एक्स है, सो डेल्टा Y क्या आ रहा है, डेल्टा Y आपका बहुत ही जीरो आ रहा है, राइट. IC कांस्टेंट है, IC कांस्टेंट है तो इस डेल्टा Y मतलब डिफरेंस बिटवीन द करंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है क्योंकि कांस्टेंट ही है ना. सो ये अगर जीरो आ रहा है तो डिनोमिनेटर में अगर जीरो रहेगा सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो विल बी इनफाइनाइट, राइट. एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो विल बी इनफाइनाइट. तो जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो कैसा आ रहा है, इट इज वेरी वेरी हाई, इट इज वेरी वेरी हाई. सो ये बात याद रखनी है आपको कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में से हमें आउटपुट रेजिस्टेंस मिलेगा. आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी वेरी हाई. Okay, so this is regarding the active region. Okay, now saturation region, what will happen, both the junctions are in forward bias, and if both the junctions are in forward bias, this region is called as your saturation region, right. So these are the output characteristics of common base configuration. Thank you.